Hello students, welcome back to my channel Vishi's Academy. Today in this video we will discuss the topics classification of computers, their uses and characteristics of a computer. So let's start one by one. Classification of computers. Computers are classified in 4 types according to their size, storage and capacity. So they are classified as personal computer, mini computer, mainframe computer and supercomputer. Now let us discuss them one by one in detail. First is personal computer or PCs. Personal computers are also called as microcomputers. As the word suggests micro means very small. So microcomputers are the smallest type of computers. जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पर्सनल कंप्यूटर्स की, सिंगल यूज़र सिस्टम्स होते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी लो होती है. इसमें जो स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ करते हैं वो CD रोम, फ्लॉपीज़, हार्ड डिस्क यूज़ होता है पर्सनल कंप्यूटर्स में. आई हैव ऑलरेडी टॉट अबाउट CD रोम, फ्लॉपीज़ एंड हार्ड डिस्क इन डिटेल in my previous video. If you haven't watched that video, you can watch the video by clicking on the link given in the description box. Now if we talk about uses of personal computer, so bank use personal computers to enter data of the accounts of their customers. Customers का जितना भी account details होती है, data होता है, वो सबको store करने के लिए बैंक जो है personal computers use करती हैं. Professional organizations में होते हैं word processing, accounting, desktop publishing, small database management applications और presentations के लिए. होम और स्कूल में स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं टू सर्फ द नेट, टू क्रिएट देयर प्रोजेक्ट्स एंड प्ले गेम्स. उसके बाद बात करते हैं हम सेकेंड टाइप ऑफ कंप्यूटर की, दैट इज़ मिनी कंप्यूटर्स. मिनी कंप्यूटर्स आपको जैसे कि वर्ड से पता चल रहा होगा, मिनी आर लार्जर दैन माइक्रो but they are also small computers. These computers are more powerful and expensive than microcomputers and it can support more than one user at a time. अगर हम माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम से इनको कंपेयर करें तो ये फास्टर ऑपरेटिंग स्पीड और ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी हमें ये प्रोवाइड करते हैं. मिनी कंप्यूटर्स को हम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कैड, साइंटिफिक रिसर्च, एयर टिकट्स रिजर्वेशन, बैंकिंग वगैरह में भी हम यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद द थर्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर इज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर होते हैं. इनको लार्ज स्केल कंप्यूटिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब कि इसमें ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है और ये डेटा भी ज़्यादा प्रोसेस करता है बहुत अच्छी स्पीड पे. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स नीड लो टेम्परेचर एंड स्पेशल डस्ट प्रूफ रूम्स. दे आर यूज्ड बाय लार्ज कंपनीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, एयरलाइन मैनेजमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेट्रा. मेन फ्रेम कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर्स या टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दिया जाता है और जो भी डेटा होता है कनेक्टेड टर्मिनल्स का वो सारा कंप्यूटर में स्टोर होता है. Now next is supercomputers. Supercomputers are the biggest and fastest machines. They can process huge amount of data within seconds. Their storage capacity is much more than micro, mini and mainframe computers. Supercomputers बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और इसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता है. इसमें जो भी हम एप्लीकेशंस प्रोसेस करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की ज़रूरत होती है. सुपर कंप्यूटर्स आर असेंशियल फॉर एप्लीकेशंस रेंजिंग फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन टू एक्यूरेट वेदर फोरकास्टिंग, डिज़ाइनिंग द सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा. India has developed a supercomputer called Param. Other examples of supercomputers are Siree 360, Hitachi 81020. So if we summarize the uses of different types of computers, then you can look at this table. Microcomputers are used in home, schools, business and banks. Mini computers, internet server, email server. Mainframe computers, large company organizations, healthcare organizations, banking, finance sector, etc. Supercomputer, weather forecasting, scientific research centers, designing aircraft, etc. And now if we talk about the difference between the microcomputers and the mini computers, then you can write that microcomputers are the smallest type of computers
whereas mini computers are larger than microcomputers. Microcomputers have low storage capacity, but mini computers have larger storage capacity than microcomputers. Microcomputers less expensive, whereas mini computers are expensive than microcomputers. Microcomputers are single user systems, whereas mini computers support more than one user at a time. Now if we talk about the characteristics of the computer, कंप्यूटर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, तो उसमें आता है स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी, एक्यूरेसी, versatility, diligence. Now let us discuss them one by one in detail. So first is speeds. As we all know that computers work at a very high speed and can perform various operations, mathematical calculations like addition and subtraction in a few seconds. The speed of a computer is measured in terms of million instructions per second. Second is storage capacity. कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत सारे डेटा को या इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है और जब भी हम चाहें तो उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसको हम किलोबाइट्स में मेजर करते हैं, किलोबाइट्स गीगाबाइट्स में। एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है। अगर कंप्यूटर को सही डेटा प्रोवाइड किया गया है, जब भी कंप्यूटर आपको रिजल्ट्स देगा तो वो हमेशा एक्यूरेट देता है आउटपुट, जिसको हम बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी इज, क्योंकि कंप्यूटर मल्टीपर्पस होते हैं, इसे हम बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए इसको वर्सेटाइल मशीन्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल दे कैन कैलकुलेट नंबर्स, create graphics, animations, presentations, designs, spacecrafts, etc. डिलीजेंस इज, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स क्या होता है, काम करते करते थक जाते हैं, बट कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता है। आप पूरे दिन भी अगर कंप्यूटर पर काम करेंगे तो कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म अ टास्क रिपीटेडली विद द सेम एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी एज इट डज इट फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट इज हाई स्टोरेज कैपेसिटी। हाई स्टोरेज कैपेसिटी मैंने आपको बताया कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है बहुत बड़ी होती है, सो इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन वेरी स्मॉल स्पेस। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द वीडियो इज लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। अगर हम कंप्यूटर्स की डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। कंप्यूटर में डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ नहीं होती हैं। दे नीड टू बी टोल्ड ईच एंड एवरी स्टेप। अगर आपको कोई भी रिजल्ट चाहिए तो आपको उसमें पहले डेटा इनपुट करना पड़ेगा। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें आपका डेटा सेव नहीं है, तो या तो जितना भी डेटा आपने उसमें फेड किया है वो सारा डेटा आपका लॉस्ट भी हो सकता है, तो वो आपको जो काम आप कर रहे थे उसको आपको स्टार्टिंग से भी करना पड़ सकता है। So students, I hope you got the topics I taught in this video. Thank you. Take care.